السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم تمام یہاں پہ جو جمع ہیں مسجد اعظم مرکز اہل سنت والجماعت اشوکا روڈ لشکر محلہ میسور کی مجلس منتظمہ اور یہاں کے تمام عملہ جو یہاں پہ جمع ہیں، ہمارا مقصود یہ ہے، یہ پریس میٹ کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ العظیم آنے والی 26 اگست 2026 جو کہ تاریخ ہے جشن مولود مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور مجلس منتظمہ کی جانب سے اور پورے اسٹاف کی جانب سے عالم اسلام کو بالعموم اور شہریان میسور کو بالخصوص دل کی اتاہ گہرائیوں سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ اسے قبول فرما لے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کو تو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننے لگو گے تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ظاہر سے بات ہے کہ اس عالم رنگ بو میں سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ کی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جس کے تعلق سے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری عالمین کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اور عالمین میں ساری چیزیں داخل ہیں، سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو یہ ہم سب کا فریضہ بنتا ہے اور یہ ہم سب کا حق بنتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود شریف کے مبارک موقع پر خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ بہر صورت ہمارا مقصود یہ ہے کہ جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم 1501 سالہ جو منایا جا رہا ہے 2026 میں، مسجد اعظم مرکز اہل سنت میں امسال مجلس منتظمہ کی جانب سے انشاءاللہ العظیم 25 اگست 2026 بروز منگل کو بعد نماز عشاء یعنی کہ 12ویں شب میں ایک جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ جلسے کا نام آمد باعث تخلیق کائنات کانفرنس ہے۔ انشاءاللہ العظیم شہر میسور کے سرقاضی حضرت علامہ مولانا الحاج محمد عثمان شریف صاحب کی صدارت میں یہ جلسہ منعقد ہوگا۔ اس کے علاوہ تمام علماء اہل سنت، تمام تنظیمیں، جتنے بھی مدارس ہیں، مساجد ہیں، ان کے ذمہ داران، مشائخ، علماء، سارے کے سارے لوگوں کو مدعو بھی کیا گیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس جلسے میں وہ تمام حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیں گے اور شرکت بھی فرمائیں گے۔ جلسے کے بعد انشاءاللہ ضیافت اور تبرک کا اہتمام بھی مجلس منتظمہ کی خود ذاتی کمائی سے رکھا گیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کے بعد رات 11:30 بجے یعنی 12ویں شب میں منگل والے دن کی میں بات کر رہا ہوں، ہر سال کی طرح ان سال بھی جو قدیم روایات کے مطابق چلتا چلا آ رہا ہے ہمارے بزرگوں سے، اسلاف سے، اکابرین سے، مسجد اعظم مرکز اہل سنت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں رات بھر یعنی شب بھر نعت خوانی ہوتی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کیا جاتا ہے، اور شہر میسور کے تمام جو شعراء حضرات ہیں، جو نعت خواں حضرات ہیں، ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ گزشتہ روایات کے مطابق امسال بھی آئیں گے اور اپنے کلام سے اور سرکار کی نعت سے ہم تمام کو محظوظ بھی کریں گے، اور یہ سلسلہ رات 11:30 بجے سے چل کر صبح صادق تک یعنی اذان فجر تک چلے گا۔ اس کے بعد اختتام ہوگا صلاۃ والسلام پہ، بعد نماز فجر پھر ضیافت یعنی تبرک کا بھی اہتمام رکھا گیا ہے۔ میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ جو نعت خوانی ہے یا جلسے کا انعقاد جو کیا جا رہا ہے، یہ مجلس منتظمہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی خاص اور عام کی بات نہیں ہے، یہ مرکزی ادارہ ہے، مرکزی جگہ ہے، ہر ایک کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ آئے اپنے کلام کو پیش کرے، وہ کسی بھی مشرب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، اس میں کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ سارے لوگوں کا مرکز ہے، سارے لوگوں کی مرکز عقیدت بھی ہے۔
तमाम लोग इसमें शिरकत फरमाएं और जिस तरीके से गुज़िश्ता सालों में वो अपने कलाम को पेश करते रहे हैं। मैंने तारीख सुना है यहाँ की कि एक ज़माने में लालटेन और चिराग जलाकर रात भर नात ख़वानी होती थी। आज ये इम्प्रूवमेंट हुआ, अल्लाह ने इस कौम को हिदायत दी और यहाँ तक पहुँचाया। अल्लाह ने वो वसअतें बरकतें अता फरमाई और वो सहूलतें अता फरमाई कि लाइटिंग, चांदनी, सारी चीज़ों का एहतमाम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ज़रूर भी ज़रूर आएँ। साथ ही साथ ये कि मरकज़ की तरफ से, मजलिस मुंतज़िमा की जानिब से और तमाम उलमा अहले सुन्नत की जानिब से ये मैं पैगाम देना चाहूँगा कि 26 अगस्त 2026 को जुलूस-ए मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एहतमाम शहर के कई मकामात से जुलूस-ए मुहम्मदी निकलता है। अलग अलग टाइमिंग होती है। मस्जिद आज़म मरकज़ अहले सुन्नत के सदर बाब से भी, सदर गेट से भी जुलूस-ए मुहम्मदी का एहतमाम ये दोपहर के 2 बजे 2:12 पे यहाँ से निकलता है। मैं जुलूस में तमाम शुरका के लिए एक पैगाम देना चाहूँगा कि जैसे कि जुलूस में बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं जो गैर शरई होती हैं। मिसाल के तौर पे कुछ जुलूस बाद नमाज मगरिब भी निकलते हैं, कुछ फजर के बाद भी निकलते हैं, कुछ ज़ोहर के बाद भी निकलते हैं। उसके अलावा जब चांदनी लेकर निकलते हैं तो मीलाद कमेटियों से मेरी एक अपील और गुजारिश है, बड़े अदब के साथ, अगर मेरी बात किसी को बेजारगी का सबब बने तो मैं अव्वलन अपनी मजलिस की तरफ से और मैं खुद अपनी जानिब से मोहब्बत के साथ उनसे माजरत खा हूँ, माफ़ी भी तलब करता हूँ। चूँकि हम और आप जानते हैं कि सारी कायनात जिसके सदक़े में अल्लाह ने बनाई है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है और सरकार के सदक़े में अल्लाह ने हमें जीने का सलीका दिया है। खाने पीने का इंतज़ाम सब नबी के वसीले से हमें मिलता है। ज़ाहिर सी बात है, जब हम अपने माँ बाप का अदब करते हैं, अपने उस्ताद का अदब करते हैं, अपने बड़ों का एहतराम करते हैं, तो जिस नबी के सदक़े में पूरी कायनात बनाई गई है, जब उनका जुलूस हो तो हमें अदब का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मेरी गुजारिश है कि आप गुस्ल करें। अगर आपके पास नए लिबास हैं तो आप बावजू होकर नए लिबास पहने, नहीं तो धुले हुए लिबास पहने, इत्र वगैरह लगाए। जब जुलूस में निकलें तो बेहंगामी तरीके से ना निकलें, बल्कि अदब का खास ख्याल रखें। साथ ही साथ ये कि मुंह में पान, गुटखा, सिगरेट, इन सारी चीज़ों से इज्तनाब करें और नीची निगाहें करके अल्लाह अगर हम सबको तौफीक दे, हिदायत दे, तो दरूद शरीफ भी पढ़ते चलें। क्योंकि सरकार का ये जुलूस निकाला जा रहा है, कोई मामूली हस्ती या किसी का नहीं है, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है। इसी तरीके से बाद मकामात पे ये भी देखा जाता है कि हमारे नौजवान भाई मुसलमान जो कि एक ही नबी का कलमा पढ़ने वाले, एक ही रसूल को मानने वाले हैं और उन्हीं के सदक़े में अल्लाह ने ये जीने का सलीका दिया है कि वो अपने मुँह में केरोसिन भरते हैं और आग का अंगारा निकालते हैं। इसी तरीके से पटाखे छुटाते हैं। धक्का मुक्की चांदनी के मौके पे किया जाता है। ऐसे बाद मकामात से शिकायतें आती हैं। मैं गुजारिश करूंगा मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये हम और आप सब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत फरमा रहे हैं, लिहाजा धक्का मुक्की न करें, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। इसी तरीके से रास्ते में जब चलें तो अदब का खास लिहाज रखें, गैर शरई कोई काम ना करें, क्योंकि इस्लाम और शरीयत और सरकार की हदीस से ये पटाखे फोड़ना या उछलना कूदना, डांस करना डीजे पे, ये कहीं से भी इसका कोई सबूत नहीं है। ये सरकार का जुलूस है, अदब का खास ख्याल रखें और साथ ही साथ ये कि सारी चीज़ों का आप एहतमाम करें और तमाम लोग जब उसमें शरीक हों जुलूस में तो अदब के साथ चलें, दरूद शरीफ पढ़ते हुए चलें। पानी वगैरह जो है, तबर्रुकात वगैरह है, अल्लाह अगर तौफीक दे तो आप अदब के साथ उसका भी एहतमाम करें, पानी वगैरह पीने का, तबर्रुकात वगैरह का, ये सारी चीज़ों का करना हमारा दायित्व, हमारा फरीज़ा है। और सरकार की मिलाद शरीफ में खूब खर्चा करिए, आप खुशी का इजहार करिए। अल्लाह ने आपको जितनी तौफीक दी है, लोगों को तबर्रुकात बांटिए, नबी का सदका निकालिए और उनके सदके ही में तो अल्लाह ने हमें जिंदगी बख्शी है, सारी चीजें दी हैं। आज जो हम खा पी रहे हैं उन्हीं के नाम से निकालिए, गरीबों की मदद कीजिए। मौलूद शरीफ का मकसद भी यही है कि आप किसी की हिमायत करें, किसी की मदद करें। पड़ोस में आपका कोई गरीब है, आप उसके राशन का एहतमाम करें। पड़ोस में कोई बच्ची है जो निकाह की वजह से बैठी हुई है और उसका कोई सहूलत नहीं है, आप मिलाद शरीफ के मौके पे मिलजुल कर चंदा वगैरह करके साथ में कुछ रकम मिला के उसकी शादी का एहतमाम करें। यह भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार है। यतीम अगर कोई बच्चा है तो नबी की वो हदीस पाक के तहत उसके सर पे हाथ फेरें। ये मौलूद शरीफ का मौका है। इन सारी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें और अपने बड़ों का भी अदब रखें और जुलूस मोहम्मदी में कोई गैर शरई काम ना करें। यह मेरी तरफ से पैगाम है और मस्जिद आज़म मरकज़ अहले सुन्नत की कमेटी की तरफ से भी यही पैगाम है। कमेटी के तमाम अहबाब यहाँ बैठे हुए हैं। हज़रत अल्लाह मौलाना सलमान साहब जो कि मस्जिद आज़म मरकज़ अहले सुन्नत के इमाम हैं, ये भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। हम सब की तरफ से यही पैगाम है कि इंशाअल्लाह आने वाली
25 अगस्त 2026 बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा मस्जिद आज़म मरकज़ अहले सुन्नत में उस्मान कादी सर साहब के सदारत में, उनकी निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में एक जलसा हो रहा है। वो तशरीफ़ फरमा होंगे, आप हज़रात उसमें ज़रूर शिरकत फरमाएं। जलसे के बाद ज़ियाफ़त रहेगी। उसके बाद साथ ही साथ जब 11:30 बजेंगे रात के, तो उसी शब में रात भर नात ख़्वानी का एहतमाम रहेगा और फजर के बाद ज़ियाफ़त रहेगी और इख्तिताम सलातो-सलाम पर होगा। इसके अलावा ये भी है कि आप पाकी सफाई का भी खास ख्याल रखें। रास्ते पे चलते हुए जब आप जा रहे हैं, अगर कोई तबर्रुक दे रहा है, कोई बॉटल वगैरह इधर उधर ना फेंकें और कोई भी काम ऐसा ना करें जो कानून के भी खिलाफ हो और शरीयत के भी खिलाफ हो, क्योंकि हर एक की नज़र बनी रहती है। कोई ऐसा भी बेहंगम तरीके से काम ना करें कि कानून की गिरफ्त में आए। और जब रात भर जगेंगे, शब बेदारी होगी, तो उसमें नौजवानों से मेरी ये भी अपील है कि गाड़ियों से इधर उधर ना घूमें। अगर कब्रिस्तान वगैरह भी जाना है तो आप अदब के साथ जाएं और फालतू वक्त इधर उधर ना गुजारें। सरकार का मिलाद अपने घर पे मनाएं या मसाजिद वगैरह में जहाँ पे प्रोग्राम रहे वहाँ शिरकत करें। नात खानी की जो महफिल हो वहाँ शिरकत करें। सड़कों पे हंगामा करना या गैरों के मोहल्ला में जाकर किसी को तकलीफ देना, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं से भी कोई दलील हमको नहीं मिलती है कि ऐसा कहीं साबित है इस्लाम में। ये सब इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।